Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahle Bayt High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are learning physics for class 12 or else you can say intermediate like INTER inter second year, and we will going to start one of our new chapter, and the sequence of the chapter is and the name of the chapter is, yes, all of you tell me the name of the chapter. The name of the chapter is nothing but CURRENT, current electricity, ELECTRICITY. What do you know about the electricity, all the student and viewers? We have already come across the experiment related to the electricity from our lower classes, coming to like 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 10th also. The most probably in this topic current electricity you might have learned in your two classes, higher level classes like 8th standard and 10th standard. After that you are learning this current electricity in 12th standard or inter second year, we can say. So first of all we need to know the basic concept related to the charge. CHARGE, charge. What is charge, all the student and viewers? Charge is nothing but it is the physical, PHYSICAL, physical property of matter which experience, WHICH, which EXPERIENC, experience force, force when in electromagnetic field, FIELD field. So in our previous chapters also we have listened to name charge. Charge is this, and for charge we have multiple definitions, but the basic definition you can remember is it is a physical property of matter which experience force when in electric field. For electric charge, CHARGE charge, for electric charge we have two different signs. One is positive charge, POSITIV, positive CHARGE charge, and one we have negative charge, CHARGE charge. And one more thing, this thing I think already I explained you in our chapter number 4 also. And we have few things with us like you know that conductor, insulator. One is conductor and another is insulator, insulator later. And we have some semiconductors, SEMI, semiconductors. Semiconductor is a thing which obeys the properties of conductor as well as insulator. So for conductor we know that electricity can flow freely in conductor. That means it's allow it, ALLOW, allows electricity, CITICT, pass through it, PASS, passes, THROUGH, through it. This is one thing. Whereas insulator, it, DOES, does not allows, ALLOW, allows electricity passes through it, passes, THROUGH, through it. And for semiconductor we have like it allows electricity, it, ALLOW, allows electricity, CITICT, partially, PARTIALLY, partially passes through it. Hope you can understand, very easy definitions. Then what is lightning with us? We have one phenomena, and the name of the phenomena is nothing but LIGHTINING, lightning. What do you know about the lightning, all the student and viewers? Lightning is a phenomena when charges flow from cloud to earth or clouds to clouds. This is the phenomena. Now this is a basic thing related to the current electricity. We will going to go through few topics. After that we will going to learn few questions and answer, which is very important for your examination point of view.
And one more thing I would like to discuss related to the IP, that is Intermediate Public Examination. We have come across with one chapter. The chapter sequence is 1. The name of that chapter is waves. So from waves we get 8 marks question from for IP from waves, WAVES, waves. Second, like 8 marks question might be asked from this chapter itself, like current electricity. So you can know the importance related to these chapters, that you will going to get long answers. Now few lines explanation in Hindi, after that we can continue our main subject. जैसा कि ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, आपको पता है मेरा नाम सैयद राशिद है। हम फिज़िक्स पढ़ रहे थे, इंटर सेकेंड ईयर या फिर आप क्लास 12th कह सकते, और हम आज एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर हमको पढ़ना है तो हमको कुछ बेसिक चीज़ों का इल्म यानी पता होना ज़रूरी रहेगा। जैसा कि चार्ज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और लाइटनिंग। तो इसी से रिलेटेड मैंने कुछ लिखा था, आप चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा साइड में ठहर के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप साथ में पॉज करके कॉपी करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। देखिए चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज क्या है, ये कौन से भी मैटर के अंदर एक फिजिकल प्रॉपर्टी रहती जो फोर्स को एक्सपीरियंस करती। फोर्स किसे कहते हैं, बेसिकली हमारे पास फोर्स के लिए जो मेन डेफिनेशन है, आइदर लाइक पुश और पुल, यानी थोड़ा आगे की तरफ जाएगा या फिर पीछे की तरफ आएगा, यानी कि जो प्रॉपर्टी अगरचे के वो कांटेक्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को लेके, तो इसे हम चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसमें 2 टाइप के चार्जेस होते हैं मेनली, एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा आपको और एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, और कुछ चीज़ें रहेंगे मटेरियल्स कुछ, यानी कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वैसे चीज़ें हैं जो करंट को पास करते हैं इसके अंदर से, इंसुलेटर ऐसे यानी कि थिंग्स हैं जो करंट को पास नहीं करते। वेरस सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो पार्शियली पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, और कंडक्टर्स की अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑल द मेटल्स यूजुअली क्या रहेंगे, कंडक्टर रहते हैं, ऑल मेटल्स, ठीक है। और इंसुलेटर की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स आपको इंसुलेटर मिलेंगे। और सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर में आपको आएगा सिलिकॉन आएगा, जर्मीनियम आएगा, एक्सेट्रा, एंड ऑफ दी थिंकिंग कैपेसिटी। और आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं, कई सारे डिवाइस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, जैसा कि मैं कुछ डिवाइसेस आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एयर कंडीशन AC का रिमोट है, ठीक है, दिस इज़ द AC रिमोट, दिस इज़ द मॉनिटर रिमोट, दैट इज़ LCD मॉनिटर रिमोट, एंड दिस इज़ अ मोबाइल फ़ोन एज वी नो। तो ये आपको दिख रहा है, ये तीनों भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। तो यहाँ पे दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस cannot work without semiconductors. Semiconductors plays an huge and important role to that run the electronic devices like mobiles, remotes. तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चलने के लिए या फिर आपको रन करने के लिए। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेके बिल्कुल बेसिक, very basic thing, as you can say that this is school level basic, as of now you are in college level. So we will continue same electricity definition and go on. As of now hope you have copied also, because I stand few seconds here. Now coming to the definition related to like electric current. Okay, for electric current we have more than one definitions, but as of now I am writing one small and very like easy definition for you, and the definition I am writing in front of you as you can see. Like electric current is defined, DEFINED, defined as the FLOW, flow of electric charge. This is the basic definition related to this. Or else you can say that one more definition we have with us for like electric charge, and the definition I am writing that also you can see here, the RATIO, ratio of like charge, CHAR,
GE charged, FLOWING flowing in forward, FORWARD forward direction, DIRECTION direction to the TIME time interval, like we can say time interval small t is called electric, is called like normal we are saying that current, CURRENT current or electric current, whatever you are saying, and it is usually given by capital I is equals to small q by t. This is the formula usually for electric current, and for electric current we have unit, the SI unit, SIUNIT units of electric current, electric CURRENT current is amperes, AMPHERE, ampere, and in short form we can write this ampere like AMP, isn't it? So this is the thing we have with us here, no H, AMPERE, ampere. And we have already learned in our intermediate first year chapter number 2 units and dimension, the basic fundamental quantity, one of the basic fundamental quantity with us like electric current, and the unit for this is ampere. Now after that we will going to discuss some laws usually related to the electricity. Hope you have understood this definition, very easy. जैसा कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं क्या है, ये एक डिफाइंड है यानी कि एक डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से फ्लो होता। और आप इसका और एक दूसरा डेफिनेशन ये भी ले सकते कि जो रेशो है चार्ज फ्लो हो रहा आगे की तरफ, ठीक है, टू द टाइम इंटरवल टी, उसको भी हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और उससे एक फार्मूला भी क्रिएट होगा, वो होगा I = Q/T। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें लिखा देता हूँ, यहाँ पे I से आपको इंडिकेशन है लाइक इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT करंट, वेरास आपको स्मॉल q रहेगा CHARGE चार्ज, और कैपिटल Q रहेगा, नॉट कैपिटल, स्मॉल t रहेगा TIME टाइम। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसा कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ओके, इज़न्ट इट, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, यहाँ पे कहीं एक इलेक्ट्रिसिटी आके लग रही, तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी जो उसके वायर्स कनेक्शंस इजेक्ट होते हैं, निकल के आते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड रहते, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन में बताया जा रहा ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। व्हाट इज दिस मीनिंग, मतलब क्या हो सकता है? देखिए मतलब ये हो सकता कि जो पॉइंट से इलेक्ट्रिसिटी निकल के आ रही ना, उसको अगर वो पीछे की तरफ भी जा रहा, ऊपर नीचे कुछ भी जा रहा, लेकिन वो पॉइंट से आगे की तरफ कंसिडर होता है, तो उसी की वजह से उसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखा है। तो ये भी आप चाहे तो कॉपी कर ले सकते हैं, मैं कुछ सेकंड यहाँ पे ठहर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम एक लॉ पढ़ेंगे इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेके, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज ओम्स लॉ, OHMS, ओम्स लॉ। यहाँ पे ओम्स लॉ की अगर हम बात करेंगे तो आपको शायद याद होगा, यू हैव लर्न दिस ओम्स लॉ इन योर 10th क्लास। ओम्स लॉ कहता क्या है? वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी, जस्ट आई एम रीडिंग द डेफिनेशन, यू कैन लिसन। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशन is directly proportional to the potential difference between its two end। तो यहाँ पे आप बोल सकते कि जो ओम्स लॉ का कहना ये है कि जो करंट फ्लो हो रहा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक हमारे पास डेफिनेशन है लाइक V = IR, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस प्रोपोर्शनल है किससे, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स। वेराज यहाँ पे R क्या है सर? R एक रेसिस्टेंस है जो यानी कि जब करंट आगे की तरफ जाता है, वायर्स हो या कौन सी भी चीज़ हो, जैसा कि हमारे पास यू हैव लर्न 1 सेकेंड फ्रिक्शन फोर्स इन योर इंटर फर्स्ट ईयर और इन योर 8th स्टैंडर्ड फिजिक्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या रहता? जो रिलेटिव मोशन रहता
कौन से भी ऑब्जेक्ट का सरफेस पे से अपोज करता हूँ नहीं, तो वैसे ही जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कुछ कंट्रोलिंग या फिर अपोजिंग करेगा या ऑब्स्ट्रक्शन जैसा बना के रखेगा, वो रहेगा हमारा रेसिस्टेंस। तो ओम्स लॉ वही कहते हैं कि जो करंट जो फ्लो हो रहा थ्रू द कंडक्टर और उसका फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर कांस्टेंट होने चाहिए, तो ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट से। तो यहाँ पे फर्स्ट हम ये लगा लेंगे लाइक V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट हमको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करना है तो हम V इज इक्वल्स टू IR कर लेंगे। तो ये एक फॉर्मूला हो सकता है। तो ये एक मेन जो है ओम्स लॉ का टर्म है, लेकिन इससे रिलेटेड हम कुछ और फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं, जैसे आपको V बाई आई इज इक्वल्स टू R बन जाएगा, और जैसे आपको V बाई आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू I बन जाएगा। तो ये डिफरेंट फार्मूले से ओम्स लॉ को लेके हमारे पास वैलिड रहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दी लाइक क्वेश्चन वी नीड टू गो अहेड। ये तीनों ही फार्मूले सही हैं। तो मगर फर्स्ट आपको याद कैसा रखना है, द ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the electric, okay, I am going to write here like I am writing in simple language, okay, it states that the electric electric current current flowing flowing like we can say in the conductor conductor is directly directly proportional to the potential difference difference between the ends of conductor ends of conductor conductor. But we have two conditions here. Conductor if temperature temperature and like physical condition PHYSICL physical conditions is constant CONSTANT. What is the meaning of like temperature और physical condition means I am having this marker, जो मार्कर आपके सामने है। सपोज ये मार्कर एक कंडक्टर है, समझ सकते हैं आप, इन दोनों के बीच में एक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही। तो अगर मैं इसके टेम्परेचर में अगर नीचे ऊपर करा तो आपको ये लॉ वैलिड नहीं रहेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट होना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, उसका फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होना पड़ेगा। जैसा कि इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही, मैं अचानक से इसका कैप रिमूव कर दे रहा हूँ तो इसका फिजिकल कंडीशन चेंज हो गया। जैसा आप देख सकते पहले कुछ और शेप था ये मार्कर का, अब कुछ और शेप हो गया। तो इसी की वजह से हमको ये दो कंडीशंस याद रखने होंगे। और ओम्स लॉ को लेके ये डिफरेंट आपको सिचुएशंस या इक्वेशंस बनते। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन हमको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए रेसिस्टेंस को एंट्री देनी पड़ेगी। तो V इक्वल्स टू IR हो जाएगा, तो V बाई आई इक्वल्स टू R हो जाएगा, या फिर V बाई आर इक्वल्स टू VI हो जाएगा। ये तमाम आपको यानी कि फॉर्मूले से आप देख सकते। और ये जी हाँ, ये LHS RHS नीड नॉट टू कन्फ्यूज। कभी आपको आपके मटेरियल में देगा कि R इज इक्वल्स टू V बाई आई देगा और I इज इक्वल्स टू V बाई आर देगा। अरे सर ये क्या उल्टा यानी इन्वर्स पढ़ा है, बोथ आर सेम, नीड नॉट टू कन्फ्यूज। ठीक है, जैसा कि 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 भी हो जाता, 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू भी 1 हो जाता। तो कुछ इस तरीके से रहता है। तो एज ऑफ नाउ यू कैन कॉपी दिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू दी ओम्स लॉ। Hope you have copied statement related to the Ohm's law. As of now, just you need to remember the statement related to Ohm's law. We don't need any proof because we will going to learn few different like questions and answers in depth. तो अभी आप सिर्फ Ohm's law ही याद रखें। Now we have few more small definitions with us. We need to know the basic synopsis related to this chapter like current, electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेके कुछ छोटे छोटे सिनॉप्सिस है, वो हमको पता होने चाहिए। एक है मोबिलिटी और एक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
ये एक्चुअली अगेन EMF कहते हैं, इसको EMF कहते हैं। और एक हमारे पास इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स के साथ एक पोटेंशियल डिफरेंस भी रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल? DIFFERENCE डिफरेंस। तो ये एक्चुअली बहुत आसान आंसर है, यूजुअली 10th में भी आपको था। अभी तो मैं आपको पहले मोबिलिटी का डेफिनेशन बोलूँगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस आपके स्क्रीन पे लगाते हुए समझा देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट समझने आ जाएगा। सो यू कैन सी हियर मोबिलिटी इज नथिंग बट द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। यानी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहता। सर अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है सर? ओके, डोंट वरी, आई विल टेल यू अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मोबिलिटी क्या है? डिफाइन करेगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कितनी होती पर यूनिट फील्ड, यानी उसके यूनिट फील्ड के हिसाब से। और इसका फॉर्मूला रहेगा आपको म्यू इज इक्वल्स टू लाइक वी डी। यहाँ पे वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बाई ई, वी डी बाई ई है। वेरस आपको इसको फिर अगेन हम लिख ले सकते हैं लाइक ई इंटू, या ई यानी चार्ज है और यहाँ पे टॉर्क है, ये टॉर्क का है डेफिनेशन। ई लाइक टाउ बोलते हैं इसको, हम टाउ पढ़ते हैं बाई एम। ये एक फार्मूला रहता है मोबिलिटी को लेके, और इन दोनों का डिफरेंस मैं अभी आपको स्क्रीन पे लगाते हुए समझा रहा हूँ। होप यू आर सीइंग लाइक वन इमेज ऑन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पे एक इमेज नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये इमेज आप देख सकते हैं, कुछ सेकंड्स में आपके रखूँगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा डिफरेंस बिटवीन EMF दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 डिफरेंट पॉइंट है EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस को लेके। सो एज ऑफ नो ये आप अच्छे से देखिए क्वेश्चन, और पॉज करके अगर आप चाहे तो कॉपी भी कर ले ताकि मैं इसको एक मरतबा रीड करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप मुझे देखिए EMF कहते किसको है? EMF इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes of cell when no current is drawn from the cell, that is when the circuit is open। देखिए यहाँ पे एक शेल है हमारे पास, we have one shell with us, okay। this shell is consist of, as you know that, two like different things, one is like positive and one is negative, and this shell is connecting to a circuit, okay। in this circuit we may give like one switch here, okay। here we can give one switch, and we have here we have one switch here, and from switch the symbol of switch is like this something, okay। we are giving one switch here as WITCH। so if what is EMF? first we need to know about the EMF definition। EMF is the maximum potential difference, एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल्स, यानी यहाँ से लेके या ये से माइनस से लेके प्लस तक का। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी सेल से आपको करंट नहीं लेके जा रही। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा दीजिए, छोटा सा बल्ब, ठीक है। और ये स्विच ऑन है, अभी ओपन है, तो ओपन है तो बल्ब क्या करेगा? नॉट ऑन। यहाँ पे स्विच क्या रहेगा? जी हाँ, ओपन सर्किट है ये, तो स्विच ऑफ रहेगा यूजुअली, यानी करंट नहीं लिया जा रहा उसके अंदर से। तो उस सिचुएशन में ये EMF कहलाएगा जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट के अंदर जितना रेसिस्टेंस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा ये। द टर्म EMF इज यूज ओनली द सोर्स ऑफ EMF। EMF जो टर्म होता है हम यूज़ करेंगे सिर्फ सोर्स के लिए, ये सर्किट से इसका यानी रिलेशन नहीं रहेगा, ताल्लुक नहीं रहेगा। इट इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन सर्किट। यहाँ पे कौन से भी सर्किट में अगर चेक EMF है तो वो हमेशा ग्रेटर रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस से। वेरएस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, इफ़ यू स्पीक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट इन ए क्लोज सर्किट। अभी क्या हुआ, सर्किट क्लोज हो गई, यानी कि करंट हम निकाल रहे हैं उसके अंदर से, तो जब के सिचुएशन में आपको रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा वो। नेक्स्ट, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। अलग अलग पॉइंट्स के रेसिस्टेंस के ऊपर
उन्हें प्रोपोर्शनल रहता है। इट इज़ मेजर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्क्यूट, ये एक मेजर है दो पॉइंट के सर्क्यूट के। हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, ग्रेटर देन ईएमएफ व्हेन द सेल इज बीन चार्ज, अगर सेल्स अगर बिल्कुल चार्ज है तो ईएमएफ से बढ़ के रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये एक बेसिक आंसर था, डिफरेंट बिटवीन electromotive force and potential difference, that also you need to write and learn. So I think I am stopping part number 1 related to the current electricity. We will going to learn same chapter like current electricity inter second year or 12th class, whatever you say, in our next session, like in part number 2. Hope the thing which I have taught in today's session is very basic. We will going to really learn the higher level physics related to current electricity, and this physics might help you in your engineering also. But as of now, just remember few things related to the today's session, and might be in next session also I will going to put glimpse related to the basic of current electricity. Afterward we will learn important things related to IP, intermediate public examination. So that's all about our today's session and today's class. I am Sayyid Rashid. You are watching Ahle Bait High School and Junior College YouTube channel. Make sure maintain notes, work hard, practice more than one time. Have a great time. Thank you.